in the new allotted class, the extended class. Earlier we had two classes only, but now it has been incremented by one more. Total three classes we need to attend. Twenty-two people join fast. Okay, it's 1:70. Let's wait more for 3 minutes. Then we'll start. Okay, now it become 1:20. So it will be much better to begin with the station rather than waiting for the rest students to attend. Okay. So one more time, welcome you all in the session of CBMC. So let's start presenting the things. Okay, so I think we have started with the factors that influences attitude strength. So can anybody confirm that this concerned topic has been started in the last class? Yes, sir. Okay. Apart from you, any other students? Factors that influence
we have studied about the different factors that are associated and influencing and stimulating our behavior, our attitudes. As we know from the previous class, that attitude is something which is not created by an individual itself. If it is not internal attitude, somehow it depends. Most of the cases, not only somehow, in many cases, the attitude formation is dependent on the external factors as well as the internal factors. So yes, these are the list of different important consideration that influences the behavior of the individual customers or a human being. So the first line, when your attitude are the result of personal experience, we have talked a lot about this. That the personal experience is your last learning that you have coped up with, that you have faced in the earlier days or few moment uh, in the previous time. If in a particular time frame you have faced situations that have stimulated you to broadcast your behavior. So learning experience is one of the important considerations that must be taken care of because this is the internal factors. Many people usually influenced by their internal attitude that is being framed by him or her. They do not rely on the external factors. So everything which is being learned from an individual itself becomes their regular behavior, resistant behavior, and that's called the attitude. So, yes, the first is your personal experience, the personal exposure with the things. Things may be like the product, like the circumstances and situations, and any other internal or external factors that is directly associated or belongs to your attitude change, your attitude formation. So the personal experience is one of the factor. The second one, when you are an expert of the subjects. Last day, I think these 2 points have been covered up. One more time, I would like to tell you that expert of the subject means what? When you are specialized in a particular area. In this case, you form your own attitude and do not. It is not possible that anybody or any other external factors can change your behavior because you know the subject matter well. So it is not possible to mislead a person, to misguide a person if he is the subject expert. For example, let's present an example from your classroom. That in a classroom, many students have their own attitudes towards their teachers, towards their class teachers or any other faculty members. When the teacher ask questions from the students, some students are positive towards the answering and they give the right answer, but somebody have the many excuses like, sir, I have not studied about this, I was absent in the classroom, and blah blah. So but the teachers knows well that which is the right explanations and which are the excuses. So, yes, the teachers knows about their students well, but students can't understand that. So they regularly try to mislead the teachers that because of this reason, sir, I was not attending the class because of like I met with an accident in the road or मेरी टायर जो है पंचर हो गई थी या कुछ और प्रॉब्लम हुआ था इसलिए I'm late in the classroom. But it's the common habit. A teacher can evaluate the behavior of a student easily because he is having the experience, long experience for interacting with the students. So he is the subject expert. Subject expert means what? Like he knows the behavior of individual students. कि भाई कौन कितना ज्यादा पॉजिटिव वे में पढ़ाई करता है या क्लास के प्रति वो अवेयर है या कौन बहुत ज्यादा जो है लापरवाह है, नेग्लिजेंट है. So he's the expert. So doesn't matter how many times students make a request to the faculty members and present their own explanations. The teachers do not believe on the students because they know each and students well. They have been associated in a teaching profile for last 10 years, 15 years, 20 years, 5 years. So he or she knows about the students' personal profile. Students
personal behavior. It is much easier. So yes, when you are an expert of certain area or a subject matter, nobody can mislead you. कई एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स के अंदर बहुत सारी जो हैं फॉल्स चीज़ें बताई जाती है। एक जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है या जो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है, वो उस चीज़ों पे आसानी से विश्वास कर लेता है। जैसे आप देखते होंगे कि लाइक आपके पास कभी कोई टेली कॉलिंग आती है, प्रमोशनल कॉल्स किसी कंपनी की तरफ से, किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरफ से कि सर वी आर कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी एंड वी हैव सम स्पेशल ऑफर फॉर यू, ओनली इट इज मींट फॉर यू, it is designed for you. We do not offer this offer to the other customers. You are the valuable customers. अब जो बेचारा सीधा साधा जो फर्स्ट टाइम इस तरह की टेलीकॉलिंग फेस करता है, तो उसको लगता है कि वाकई में द कंपनी इज स्पेशली स्टैंडिंग फॉर मी, दे टेक केयर फॉर मी स्पेशली, एंड दे रिलाई ऑन द कंपनी एंड दे स्टार्ट परचेजिंग. But people like we and you students are well aware about the telecalling, the promotion calls which comes from the company sites, from their customer care executive centers. So when this kind of calls arrives on your mobile phone, what do? What kind of explanations you gives to the customer care executives? Because you are the expert. You know that this is cheating. Somebody, some company wants to cheat you. So what kind of response you usually gives to the callers, the telecallers? Yes, anybody? सर कंपनी के बारे में वो खोजबीन करके तब आपको बताते हैं, या फिर प्रोडक्ट के बारे में खोज करके फिर बताते हैं आपको? पूछ करके हम ज़्यादा नहीं होता है, आप सीधे कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट बिकॉज आई एम वेल अवेयर अबाउट योर कॉल्स एंड ऑल. जैसे कई बार मेरे साथ हुआ है कि भाई आप देखते होंगे कि जब आप गाड़ी चलाते हैं और पेट्रोल पंप में जाते हैं तेल भरवाने के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव खड़ा होता है किसी कंपनी का. वो फटाक से आपको पकड़ लेता है, वो कहता है कि सर हमारे पास कुछ आपके लिए प्लान है, मैं इस फलाने कंपनी से आया हूँ, हमारे पास कुछ स्पेशल प्लान है, आप इस फॉर्म को भर दीजिए और मे बी आपका जो है आपके नाम से लॉटरी निकलेगी, फिर हम आपको गिफ्ट वाउचर देंगे. अब लोग क्या करते हैं कि अनजाने में सोचते हैं सही में कुछ इसमें फ़ायदा होगा, तो वो जो अपना फीडबैक है या जो उसका जो फॉर्म है वो फिलअप कर देता है. अब फिलअप करते ही शाम को घर जाता है, शाम को कॉल आ जाती है, सर हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, आपसे हमने एक फीडबैक कलेक्ट किया था पेट्रोल पंप में, याद है आपको? बोला हाँ हाँ याद है. तो सर आपके नाम से एक लॉटरी लग गई है, तो आप आके हमारे ऑफिस में कलेक्ट करके ले जाइए. तो जब इस तरह की बातें आती है तो हम लोग मैं इस तरीके से फेस कर चुका हूँ और मैं उसको सीधा साफ तौर पे मना कर देता हूँ. मैं उससे पूछता हूँ कि भाई किस तरीके का गिफ्ट वाउचर आप दे रहे हैं मुझे बताएंगे? वो सीधा कहेंगे सर आपको ऑफिस आना पड़ेगा, यहाँ से हम आपको नहीं बता सकते. अब ऑफिस क्यों बुलाते हैं? वो इस सीधी सी बात है कि नथिंग इज फ्री इन दिस रियल वर्ल्ड. एक कहावत है कि कुछ भी दुनिया में फ्री नहीं मिलता है. और हम लोग पढ़ चुके हैं, वी आर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट हाउ टू mislead a customers for selling the product or services of a company. तो मैं सीधा साफ मना कर देता हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर गिफ्ट वॉचर्स, थैंक यू वेरी मच. बट वही चीज़ अगर एक अनजाना आदमी होगा, उसको लगेगा कि वाकई मेरे नाम से लॉटरी निकलेगी, वो दूसरे सुबह पहुंच जाएगा उस कंपनी के दफ्तर में और फिर वहाँ पे वो क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे कि सर ये गिफ्ट वाउचर जो अवेलेबल है वो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. हमारे कंडीशंस क्या है कि सर आपको ये प्रोडक्ट हमारा खरीदना पड़ेगा, आपको इसका मेंबर पढ़ना पड़ेगा, आपको ये पॉलिसी लेनी पड़ेगी, तभी आपको मिलेगा. इसी वजह से वो सीधा ऑफिस में आपको कॉल करते हैं. तो अगर मैं एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ, अगर मैं जानता हूँ इस तरीके के कॉल्स को कि कैसे वो दे ट्राई टू मिसलीड पीपल, तो उसको साफ सीधा मना कर देते हैं, नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. जैसे कहीं से कॉल आया इस तरीके से, आगे बढ़ने से पहले ही साफ बोल देते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट हैव टाइम, थैंक यू वेरी मच. बट एक अनजाना आदमी जो है उसको समझ में नहीं आता है और वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है. तो यस, अगर आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट या डिनाई करने में आपकी अहम भूमिका होती है, बिकॉज आपके पास एक फिक्स डिटर्मिनेशन होता है. You know about the things, about the circumstances, about the subject matters well, so that is why you are much capable
either in accepting that product or services or denying that service. Yes, the second factor is when you are expertise, when you are a specialist in a particular area, you have the capability to make a decisions pertaining to that circumstance. ठीक है? तीसरा है when you expect a favorable outcome. I think ये चीज़ हम बता चुके हैं. Can anybody tell? When you expect a favorable outcome. ये पॉइंट हो चुका है. I think ये 3. जैसे आप में से कोई बताइए. फेवरेबल आउटकम मतलब क्या होता है कि व्हेन यू हैव सम ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड, यू हैव सम डिटर्मिनेशंस, और जिसके वजह से आपको पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो एटीट्यूड आपको उस तरीके से डेवलप करना पड़ता है. कल ही शायद हमने एग्जाम्पल लिया था कि यू वांट टू स्कोर हाई इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, व्हाट शुड बी एटीट्यूड, योर पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द स्टडी. अगर आपने हाई स्कोर के बारे में सोचा है तो आप कभी भी नेग्लिजेंसी नहीं दिखा सकते. आप क्लासेस अटेंड करेंगे, सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एग्जाम से पहले ठीक से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे एंड सो ऑन. तो एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स योर स्टडीज, बिकॉज यू हैव some future determination to be achieved, that is favorable outcome, the results, the semester results. So that is why you are working hard, you have the positive attitude towards your studies. So yes, when you are desirous to attain a favorable results or outcome, you develop a kind of attitude, the positive attitude. When the attitudes are repeatedly expressed, जब बार बार चीजें रिपीट होती हैं तो आप उससे सीखते हो और वही बिहेवियर इंप्लीमेंट कर लेते हो अपने थ्रू आउट लाइफ पीरियड के लिए. आप किसी प्रोफेशनल लाइफ में जीते हैं, अगर किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, तो वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से अपनी जो एटीट्यूड को रेगुलराइज कर लेते हैं. कितने बजे हमें ऑफिस जाना है, कितने बजे हमें छुट्टी मिलती है, क्या हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने बजे लंच टाइम होता है, कितने बजे हमारी मीटिंग होती है, वगैरह वगैरह. यू नो वेल अबाउट योर जॉब descriptions. So that is why your attitude towards your professional life is positive. Positive means what? Like if I do not do all these things, the organization will treat me negative. और जो भी promotions हैं, जो salary है, वो मुझे नहीं मिल पाएगा. तो मैं उसके हिसाब से क्या करता हूँ, अपने बिहेवियर को रेगुलाइज कर लेता हूँ. मुझे पता है कि मुझे ऑफिस में क्या करना है, कब जाना है, कैसे जाना है, और इस तरीके से हमारा एक एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट है व्हेन यू स्टैंड टू विन और लॉस समथिंग ड्यू टू विश्लेषण. जब आपको लगने लगता है कि किसी चीज के वजह से मुझे फायदा या नुकसान होगा, तो अगर फायदा है तो फायदा कैसे मिलेगा, मैं अपने आप बिहेवियर को उस हिसाब से चेंज कर लूंगा. और अगर नुकसान है तो मैं उससे बचूंगा कैसे, उसके हिसाब से अपने एटीट्यूड को फॉर्म कर लेते हो. ठीक है. ये सीधी सी बात कहता है कि जब जो आउटकम है, आउटकम में आप अचीव करना चाहते हो, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी उसके साथ एसोसिएट होना चाहिए. अदरवाइज वो अचीवमेंट आपको नहीं मिल पाएगी. लेकिन अगर आपको लगता है किसी चीज से हमारा नुकसान है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो मेरा नुकसान है, यानी कि अगर मैं अल्कोहलिक प्रोडक्ट या टोबैको प्रोडक्ट लेता हूँ तो इट इज subject to injurious to health. So I will boycott all those products. I will have a negative attitude because that kind of products harms my health. So I would deny. When I will have an opportunity to take tobacco product or alcoholic product, I would say no. Because I know कि इन चीजों को कंज्यूम करके मैं एडिक्टेड हो जाऊंगा और मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा. तो आप साफ मना कर देते हैं. तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है. अगर आपको कुछ जीतना है, आपको कुछ हासिल करना है, तो उसको हासिल करने के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेते हैं. आपका एक पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव बिहेवियर उसके लिए आप एसोसिएट कर देते हैं. लेकिन जिन चीज़ों को लगता है कि आपको नुकसान है, तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको क्या बिहेवियर करना चाहिए, आप उसको आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं. So yes, depending upon the winning or losing, a
person usually frames their attitude. अब एक line है, attitude can change to match behavior. Now, attitude is not something which is fixed all the time, static all the time. It's a dynamic. कोई एक ऐसा पर्सन आई थिंक इस रियल वर्ल्ड में नहीं अवेलेबल होगा जो एक पॉजिटिव बिहेवियर को थ्रू आउट द लाइफ फॉलो करता है. आई वुड से वेरी लेस 4 to 5% पीपल मे बी देयर. हर आदमी की अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं, और वैसे स्थितियों को देखते हुए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को नेगेटिव और नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव कन्वर्ट करना पड़ता है. जरूरी नहीं है कि एक सा बिहेवियर थ्रू आउट द लाइफ आप फॉलो करें. सिचुएशन को देखते हुए, स्थिति को समझते हुए आप अपना बिहेवियर डेवलप करते हैं या चेंज करते हैं या अपग्रेड करते हैं. तो यस, आप अपने बिहेवियर को फर्स्ट लाइन को एक्सप्रेस कितने लोग हैं यहाँ पे अभी अवेलेबल? फर्स्ट लाइन Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then please respond properly. Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि जो एटीट्यूड या बिहेवियर इंसान के हैं वो फिक्स्ड या स्टैटिक नहीं होती है. हम सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को नए बिहेवियर में अडॉप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं. तो ये पहला लाइन हो गया. दूसरा कहता है कॉग्निटिव डिसोनेंस इज अ फेनोमेनन इन व्हिच अ पर्सन एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग थ्रू थॉट्स और बिलीव्स. कॉग्निटिव डिसोनेंस, कोई बता सकता है द टर्म कॉग्निटिव मींस? Cognitive dissonance. Cognitive means बताइए. Sir, cognitive means relating to something or some kind of the activities एक्टिविटीज जैसे in a perceived manner, like example क्या हो सकता है? सर एग्जाम्पल तो नहीं आ रहा है, बट देखिए कॉग्निटिव का मतलब होता है कि कॉग्निटिव का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में somebody is having the different attitudes but you have different. So there is a differentiation between the behavior to recognize something or some situations. You think something about a situations or product or services, but somebody is having different perception, something perception or attitude. So how to resolve that situation? किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप बात करते हैं यूजुअली, तो जो अगला है डिबेट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो डिबेट में अगला कहता है कि नो दिस इज आई एम पॉजिटिव टुवर्ड. जैसे आप यूजुअली क्लासेस के अंदर आपने ग्रुप डिस्कशन किया होगा, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. व्हाट हैपेंस कि जो आपका जो ओपोनेंट होता है, जो आपका कॉम्पिटिटर होता है, उसके पास अपने परसेप्शन होते हैं, आपके पास अपने परसेप्शन होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. ग्रुप डिस्कशन में हम यूजुअली यही करते हैं. तो जब दोनों डिस्कशन होता है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के जो परसेप्शन है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में वो सही हो या गलत हो. तो अगर सही भी नहीं है गलत भी नहीं है तो एक्चुअल में इसका आंसर होगा क्या, आप वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. जैसे हम यूजुअली कहते हैं कि ओके आई विल फाइंड इट आउट ऑन गूगल, आई डोंट नो अबाउट द थिंग्स, आई हैव सम परसेप्शन बट आई एम नॉट कंप्लीट अवेयर दैट कि ये होगा ही. व्हाट यू से, अगला कुछ और कहता है. तो लेट्स एक्सप्लोर ऑन गूगल. अब एक्सप्लोर करते हैं गूगल में, और गूगल में हमें जो सही रिजल्ट मिलता है, या किसी किताब में, किसी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में जो हमें सही नॉलेज मिलता है, उसको देखते हुए हम अपने एटीट्यूड को फटाफट चेंज कर लेते हैं. तो यस, सिचुएशनल डिफरेंशिएशंस इज व्हेन फेस्ड बाय अ पर्सन, then this is called cognitive dissonance. Dissonance
मीन्स अगर हिंदी में बात करें तो बड़ा इसका आपको शायद समझ में नहीं आया, संज्ञानात्मक मतभेद इसको हम कहते हैं। संज्ञा का मतलब नाउन को इसको हम कहते हैं, व्हाट इज नाउन? नाउन स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेसिंग, Noun is the name of person or place. और थिंग्स। और पर्सन हो गया, प्लेस हो गया। तो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो पर्सन की अपने बिहेवियर के बारे में हो या किसी किताब के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में हो, हम उसको नाउन का दर्जा दे सकते हैं। अब उस चीज के बारे में अगर हमारी कुछ एटीट्यूड है लेकिन एडवर्टीजमेंट कुछ और कह रहा है, या कोई दूसरा जो हमारा डिबेटर है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, वो कुछ और कह रहा है, तो दोनों में एक मतभेद हो जाता है, एक डिस्प्यूट हो जाता है। तो इस केस में जो रियलिटी है उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रियलिटी, लाइक लेट्स एक्सप्लोर। नॉट आई एम राइट, आई एम नॉट राइट, बट यू आर ऑल्सो रॉन्ग। तो सच्चाई क्या है, लेट्स एक्सप्लोर। आप क्या करते हैं, तीसरे सोर्स पे जाकर उसको देखते हैं, और जैसे उसकी रिजल्ट पता चलती है आप अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। यस, आई वाज द राइट पर्सन जो हमने ये कहा था, या आई एम रॉन्ग बिकॉज जो थिंग है, जो जो हैपनिंग्स है वो इस तरीके से है। तो आप क्या करते हैं, उस नए जो नॉलेज के हिसाब से आप अपने आप को नए एटीट्यूड में ढाल लेते हैं, फ्रेम कर लेते हैं। So that is the cognitive dissonance. The cognitive dissonance is the situations where there are some differentiation between the things or any kind of product or services. When different perception comes from different person, and you are still in dilemma, then you try to find out the another source of information, the right information from the right source. और जब वहां से हमें right information मिलता है तो हमारा जो mindset है अचानक से change हो जाता है। तो दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो ये भी किस चीज को डिनोट कर रहा है कि हमारा एटीट्यूड सिचुएशंस को देखते हुए चेंज हो जाता है, या नए जब नॉलेज को हम अपग्रेड करते हैं तो हमारा माइंडसेट अचानक से चेंज हो जाता है। तो दैट्स कॉल्ड द कॉग्निटिव डिसोनेंस। बिलीफ, in order to reduce these tension, people may change their attitudes to reflect their other beliefs or actual behavior. What does it mean? Your beliefs. Beliefs, yes. Who will define the term belief? ये जो लाइन है इससे आप कह रहा है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टेंशंस पीपल मे चेंज देयर एटीट्यूड टू रिफ्लेक्ट देयर अदर बिलीफ और एक्चुअल बिहेवियर। ओके, लाइक इफ यूजुअली पीपल सेज दैट कि एग्जामिनेशन के टाइम में यू स्टडी हार्ड बिकॉज यू हैव अ बिलीफ दैट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा फायदा मिलेगा। ये एक कॉमन बिलीफ है स्टूडेंट्स। बट उनमें से कुछ स्टूडेंट्स निकल कर सामने आते हैं, वो ये इनका माइंडसेट है कि कौन एक महीने पहले पढ़ाई करता है, 1 वीक पहले पढ़ाई करेंगे और पास हो जाएंगे, अच्छे तरीके से लिख लेंगे। आई हैव माई बिलीफ, ऐसा हमने पिछले सेमेस्टर में किया है, पिछले क्लास में किया है और मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो आई हैव माई बिलीफ, आई विल रिड्यूस माई टेंशन बाय सेइंग दैट कुछ नहीं होता, लास्ट वीक में पढ़ेंगे और एग्जामिनेशन में अच्छा कर लेंगे। तो आप क्या करते हैं, अपने आप को टेंशन से बचाने के लिए आप एक नया बिलीफ या एक एटीट्यूड पजेज कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो उसका फायदा मुझे इस तरीके से मिल सकता है, अगर ऐसा करूंगा तो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। तो दैट्स योर बिलीफ। Beliefs is again the internal assessment of an individual, right? Their choices towards certain product, services, or situations. So when a persons develop their own beliefs towards the situation, product, or services, he change their behavior. Okay, now the functions of attitudes. What actually the attitude does? What is the importance of an attitude? The first line says the knowledge. Attitude provides meaning or knowledge for life. The knowledge functions refers to our need for a world which is consistent and relatively stable.
हमारा विश्वास जो होगा, हमारा अपना एटीट्यूड है, उसके हिसाब से मैं पूरी दुनिया को कंसीडर करूंगा, या मुझे जो सीखने को मिलता है, जरूरी नहीं अगर इंटरनल एटीट्यूड नहीं है तो मैं जिस चीज से सीखता हूँ, चाहे वो क्लासरूम टीचिंग है, चाहे हमारा सोसाइटल नॉर्म्स है, हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे कल्चर्स है, अगर मैं उनको फॉलो करता हूँ उस नॉलेज को गेन करने के लिए, तो मेरा जो लाइफ है बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ चल रहा हूँ, जमाने के साथ चल रहा हूँ। हमारी फैमिली की बिलीफ जो है कि we should be non-vegetarians, so that's our family belief, family attitudes. If I follow that, I will have a social recognitions in my community, in my society. So my life becomes easier if I follow the behavior of the society, the behavior of the family, or even the individual behavior. So that gives you the satisfaction because you have some knowledge, you have some positive or negative perception about something or somebody. So that gives you the pleasure, that gives you the satisfaction. तो नॉलेज एक्विजिशंस होता है, और उस नॉलेज को हम अपने माइंड में सेव करते हैं, और उसके रिलेटेड जब भी कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांस फेस करना होता है, हम अपने एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने सीख रखा है, मुझे पता है। तो यस, स्टेबिलिटी इन योर लाइफ इज पॉसिबल। This allows us to predict what is likely to happen, and so give us a sense of control. Attitudes can help in us organizations and structures our experience. This allows us to predict is like what is likely to happen. Prediction is again possible if you have something, the positive or negative attitude towards something, you know well that what would happen. If I have a positive attitude, if I do not consume, I should not consume the alcoholic product because it can harm my health. So that is my positivity, and that indicates me, that warns me that अगर मैं उस चीज को कंज्यूम करूंगा तो ऐसा हो सकता है, मैं बीमार हो सकता हूँ, मेरा किडनी, मेरा लिवर फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा एटीट्यूड यानी कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है टू डू नॉट कंज्यूम द एल्कोहलिक प्रोडक्ट और टोबैको प्रोडक्ट विल हेल्प मी टू सेव माय लाइफ। तो किसके बेसिस पे कर रहे हैं आप? अपने लर्निंग के बेसिस पे कर रहे हैं, अपने एटीट्यूड के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप गलतियां करेंगे, लेकिन किसी चीज के बारे में पता है तो उसके प्रति आप अवेयरनेस दिखाएंगे, और उस काम को करने से पहले या उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। सो दैट्स सेव्स योर own beliefs, your own life. Okay, the second one is the self or ego expressive. Now, the ego, एक term है, you might have listened about the term, ego expressive. एक एटीट्यूड आपके ईगो को, आपकी सेल्फ एस्टीम को भी रिप्रेजेंट करता है। आप कहते हो कि आई एम द टाइप ऑफ पर्सन who do not believe, for example, in God. Although there are very less number of people in this world who do not believe in God, but if somebody comes and says, "I do not believe in God," there's nothing like God. So that's his attitude, his self-esteem, ego. तो अगर ऐसी भावना वो पाल के रखा है, तो चाहे वो उसको कितना भी जो उनके रिलीजन्स के, कम्युनिटी के जो हेड है उनको बोलेंगे, उस बात को नहीं मानेगा। तो उसका एक सेल्फ एस्टीम बन जाता है। अगर आपके पास अपना एटीट्यूड है, आप आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपका अपना पहचान है। हर इंडिविजुअल के पास अपनी एक सेल्फ एस्टीम होती है, अपना एक ईगो होता है, अपना एक एटीट्यूड होता है, एंड दैट मेक्स हिम और हर separated from others, from the crowd. If there are 60 students in your classroom, obviously each individual student have his or her own attitude, and that is not matched with the others. कुछ ना कुछ differentiation जरूर है। Attitude, somebody is like arrogant, somebody is well behavior, somebody is well dressed, somebody is having self-esteem because of his richness, his wealth, somebody is poor, and there's so many. So if 60 students are there in the classroom, they have their own attitude, they have on their self-esteem, self-ego, and that's their self-identity. Make sure attitude always express a person's self-identification.
सेल्फ आइडेंटिफिकेशन माइंड लाइक कि कोई किसी के बारे में कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रॉडी है। अब हम यूजुअली कहते हैं बहुत एटीट्यूड है। नाउ एटीट्यूड देखो बहुत बड़ी चीज है। यूजुअली हम अपने लाइफ में क्या कहते हैं, बहुत एटीट्यूड है का मतलब क्या है, वो प्राउडी है, वो एरोगेंट है, बहुत घमंड है उसको। लेकिन एटीट्यूड पढ़ने के बाद आपको शायद ये पता होना चाहिए कि एटीट्यूड डजंट मीन दैट कि कोई आदमी खराब है या उसके बिहेवियर के बारे में हम गलत सोच रहे हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एटीट्यूड मतलब क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन हम यूजुअली अपने डेली लाइफ में एटीट्यूड को पॉजिटिव ना लेकर नेगेटिव के रूप में देखते हैं। दैट्स नॉट द एटीट्यूड। The attitude is the self-identification of an individual being. And the self-identification like is a well behavior, grown behavior, is a arrogant, is a selfish, is a good in studies, is having good personality, is a good, communication manner. So there are numbers of attitudes are possessed by each individual in this real world, and that's their personal identifications. तो यस, एटीट्यूड का एक काम या फंक्शन ये होता है कि आदमी को अपने आइडेंटिफिकेशन को गेन कराने में मदद करता है। अगर हर आदमी अपने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए जाना चाहता है, सेल्फ एटीट्यूड के लिए जाना चाहता है, अदरवाइज nobody will be recognizable. Everybody in this world having their own ego or attitude that makes him or her differentiated from the others. Adaptive. Okay. Adaptive means, yes, tell me. You have the entire slide. Even after reading all this out, you can answer me. Adaptive. Adaptation is एडेप्टेड मीन्स मतलब किसी चीज को अडॉप्ट कर लेना, एक्वायर करना, अडॉप्ट करना, अपने जीवन में डालना। यस सर। एडेप्टिव मीन्स व्हाट कि एक 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 जो इंडिविजुअल होता है, एक आदमी होता है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ इंटरनली वो अपने एटीट्यूड को फॉर्म करता है। कई चीजें वो सोसाइटी से भी सीखता है, एडेप्शन में लेता है और अपने लाइफ को रेगुलराइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कि इफ यू लिव इन बिग सिटीज इन इंडिया और इन अब्रॉड इन अमेरिका, बट योर ओरिजिन इज बेस्ड ऑन सम रूरल एरिया, सम विलेज। आपका पूरा बचपन, आपका घर जो है एक रूरल एरिया में, लेकिन बाद में आप पढ़ लिख गए या किसी वजह से आप अमेरिका में सेटल हो गए। अब आपने क्या किया, वहां जाने के बाद अपने जो जो रूरल कल्चर्स को है उसको जो सीखा था, अमेरिका में जाने के बाद आपने वहां के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। हाँ, वो जरूरी भी है भाई, जहाँ पे जैसा देश वैसा देश हमें अपनाना पड़ेगा। हम जाकर अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट तो कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी रूट है, जो हमारी जड़ें हैं, जहाँ से हम उसके कल्चर को भूल जाएंगे। अगर आप अमेरिका जाने के बाद भी जब वापस लौटते हैं अपने कंट्री में, अपने गांव में, और उसी तरीके से अपने जो जितने रिलेटिव्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उसी तरीके से बात करते हैं, उसी तरीके से मिलते हैं, तो एक सोशल अप्रूवल मिलता है। लोग कहते हैं कि भाई जो इसका एडेप्शन था, जो रूरल एरियाज जो यहाँ पे पला बढ़ा, तो अपने जो बिहेवियर को है उसने चेंज नहीं किया, तो यू विल हैव अ सोशल रिकग्निशन। बट एट एट द सेम टाइम अगर अमेरिका जाने के बाद वापस जब आप गांव आते हैं तो अंग्रेजी में सबसे बात करते हैं और एक वहाँ के जो कल्चर है उसको लोगों को बताते हैं, तो nobody will approve your behavior. You will have a social discourage because you forgot about your earlier learned behavior. So you will not have the social recognition. Adaptation is something where a person usually always try to learn from their societal influences, from their societal cultures, from their societal obligations, religions, traditions, and so on. And that becomes their behavior. If I belong to the Hindu family, what is my responsibility? To worship the Hindu devis and devtas. Because that's my family tradition, that's my religion tradition.
If somebody born in Muslim family, they have to follow their gods. So adaptation is the social influences which is learned from a man, a person, or women from their society, from their overall surroundings. So that's adaptation, and adaptation becomes your attitude. मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ के तौर तरीके हमने सीखा, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया, तो वो मेरा एटीट्यूड बन गया, वो मेरा पर्सनल आइडेंटिटी बन गया. So adaptation is again the important functions of any attitude formation. Ego defensive. एक हमने इससे पहले पढ़ा था ईगो, दूसरा है ईगो डिफेंसिव. ईगो डिफेंसिव का मतलब अपने सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करना. जो भी आपने पजेस किया है, जहां से आपने सीखा है, उस चीज को आप अपने लाइफ में पूरी तरीके से उतार चुके हैं, एंड you will not change your behavior at any circumstance, at any cost. That is your become identity. कई टाइम ऐसा होता है कि लाइक एक आदमी जो है वो उसके पास नेगेटिव एटीट्यूड ये होता है कि I belongs to a rich class family. I do not want to have a meeting with the normal people or the poor people because they do not belong to our society. I am a rich. तो उस केस में किसी भी सिचुएशन में अगर वो इस बिहेवियर को दूसरों के लिए चेंज नहीं करता तो उसका ईगो डिफेंसिव हो जाता है. जैसे एक अदर एग्जांपल लीजिए कि इफ आई एम कंप्लीट वेजिटेरियन, I'm complete vegetarian, do not eat the non-veg items, so that becomes my positive attitudes. I do not take the smokes or alcoholic products. That's my positive attitudes. So yes, I have a ego defensive functions. कि अगर मुझे एक सोसाइटी के अंदर जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो इनवाइट करे किसी पार्टी में या किसी और ओकेजन्स में कि भाई लेट्स ईट दिस आइटम्स, द नॉन वेज आइटम्स जो कि यहाँ पे बना है, हम लोग इसको खा रहे हैं, आप भी खाइए, तो वहाँ पे मैं आई विल सिंपली डिनाई टू ईट दोज आइटम्स बिकॉज दैट्स नॉट माय कल्चर. So I have an ego defensive function. I will not eat the non-vegetarian item because my family, my community doesn't allow me. That's my belief. That's my positive attitude. Doesn't mean कि जो दूसरा है ऑफर करने वाला इसको नेगेटिव के फॉर्म में लेगा कि भाई ये बंदा बड़ा एटीट्यूड वाला है, बड़ा ही नेगेटिव आदमी है, हम जो ऑफर करते हैं नहीं खाता है. मैं अगर आई डू नॉट टेक एल्कोहलिक प्रोडक्ट तो हो सकता है कि किसी ऑफिस में यूजुअली कल्चर ये चलता है, जब आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपका जो बॉस होता है, आपका जो मैनेजर होता है, जब आप उसके साथ उठते बैठते हैं ना तो उनके तौर तरीके को भी अपने लाइफ में अडॉप्ट करना पड़ता है. तो अगर आप अल्कोहलिक नहीं है, अगर आप नहीं लेते हैं, तो उस केस में अगर किसी पार्टी में आपके बॉस ने ऑफर किया और आपने मना कर दिया तो बड़ा उसका ईगो हर्ट होता है. भाई मैंने ऑफर किया और मेरे जूनियर ने मना कर दिया, तो उसको वो दिल पे ले लेता है. उसका ईगो जो है वो सेटिस्फाइड ही होता है, लेकिन वहीं आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि आपके एक अंदर डिटर्मिनेशन है, पॉजिटिव डिटर्मिनेशन है, एटीट्यूड है कि आप कभी भी शराब नहीं पिएंगे, नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं खाते सर. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी के साथ हमारी रिलेशन खराब हो जाए, हमारा बॉस नाराज हो जाए, हमें जॉब से निकाल दे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है. आपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया है कि आई डोंट वांट टू बिकम द नॉन वेजिटेरियन नॉन अल्कोहलिक, देन आप उस चीज पे डिटरमाइंड रहते हैं, सस्टेन्ड रहते हैं बिकॉज आपका ईगो सेटिस्फाई होता है. तो ईगो डिफेंसिव का मतलब होता है कि व्हेन ए पर्सन ट्राइज टू प्रोटेक्ट देयर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन at any situation. If he's a positive, he will be the positive man. If he's a negative, he will be negative. Doesn't mean चाहे दुनिया क्या कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. I will be same what am I today. So that's your ego defensive. सिर्फ एटीट्यूड को पोजेस करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना भी आपकी एक फंक्शन होती है. That's called the ego defensive.
ये सारे लाइंस वही हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए वन बाय वन लाइन में मैं नहीं पढ़ना चाहता, उसको उतना टाइम नहीं लेना चाहता है. So ego defensive means what? Like when a person try to protect his own behavior from others. If he is a positive, he will be positive. If he is a negative, he will be negative. Doesn't mean that what others says, what the society gives them approval or disapproval. Doesn't mean मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा. That's only ego defensive. You are protecting your behavior, your ego from any circumstances. So that's ego defensive. So I think that's all about the functions of attitudes. We'll stop here today. If you have any queries related with the matters, you can ask. Any queries?